Okay. I welcome you all. Today is the biotechnology class. Uh, Today we will be studying about rDNA technology, that is the recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology क्या होती है और what are the different techniques, what are the various genetic engineering techniques that are involved for gene transfer. Okay, so first we should know that what is the definition of biotechnology. If it is asked in your exams, then biotechnology is the methods by which the living organisms or the parts are used to change or to incorporate a particular character to another living organisms. Okay, so in biotechnology we are trying to incorporate the characters from one organism to another, that is interspecific transmission of characters, and we are using various genetic engineering techniques, or we can say the genetic engineering tools for doing the transmission, for doing the transfer of characters. Okay, so it involves the application of scientific principles to the processing of materials by biological agents. So biological agents, this term is very important. So because we are using here, we are using the microorganisms also. Okay, so we are transferring the genes from interspecific species. Now, what is genetic recombination? Genetic recombination क्या होता है? Recombination का मतलब हमें पहले पता होना चाहिए. Recombination means generating something new. ओके जब हाइब्रिड्स जैसे हम डेवलप करते हैं, ए लाइन को बी लाइन से हम क्रॉस करते हैं, देन वी डेवलप द हाइब्रिड्स. तो हाइब्रिड्स क्या होते हैं? दे आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, सो दे आर कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट्स. उनको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट्स. अगर मियोसिस के प्रोसेस में क्रॉसिंग ओवर होता है, देन what we get the recombinants. Okay, so recombinants मतलब कुछ the offsprings which are something different from the parents. So genetic recombination is the exchange of genetic information between the two DNA segments. दो DNA segments के बीच में कुछ particular information is exchanging, that is resulting into recombination. So it's a common practice. Natural अगर हम देखें कि natural environment में देखें तो it's a common practice within the species. Okay, एक ही species में तो ये बहुत common occurrence है, but अगर हम इसी चीज को artificial means से करें, okay, if we do it by artificial means, when a gene of one species is transferred to another living organisms, then it is called as recombinant DNA technology. Okay, so we are doing this artificial. Through artificial means we are transferring the gene from one organism to another, then that process is called as recombinant DNA technology, and it is a very common term which is used in genetic engineering. It is also, this is also known as genetic engineering. Now coming to the definition of recombinant DNA: production of a unique DNA molecule by joining together two or more DNA fragments not normally associated with each other. मतलब ऐसे दो या तीन या दो से ज्यादा डीएनए फ्रैगमेंट्स, मतलब सेगमेंट्स, डीएनए के ऐसे सेगमेंट्स को हम ज्वाइन कर दें, एंड वी डेवलप समथिंग यूनिक डीएनए मॉलिक्यूल बाय joining two or more of the DNA fragments which are not normally associated, मतलब जो normally एक दूसरे से associated नहीं है. तो डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम ज्वाइन किससे करते हैं? कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं, जिससे हम डीएनए सेगमेंट्स को कट करते हैं. ओके, एंड डीएनए लाइगेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करते हैं. तो डीएनए फ्रैगमेंट्स आर यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट बायोलॉजिकल सोर्सेस. जब हम इंटर स्पेसिफिक ट्रांसफर कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग द डीएनए फ्रैगमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट डीएनए स्पीशीज. ओके, now coming to recombinant DNA technology, we know, अब अभी हमें पता है कि recombinant क्या होता है, then recombinant DNA क्या होता है. Now what is the recombinant DNA technology? इसमें क्या होता है? It involves the series of procedures used to recombine the DNA segments. मतलब ऐसे series of procedures, processes involved जो होते हैं, जो कि DNA segments को recombine करने के लिए हमें हेल्प करते हैं. अंडर सर्टेन कंडीशंस अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैन एंटर एंड रेप्लिकेट. मतलब जब हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब ऑल टुगेदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से एक डीएनए फ्रैगमेंट या सेगमेंट लेके हम होस्ट डीएनए में एंटर, हम उसको हम ट्रांसफर कर देंगे, एंड देन दैट गेट्स इनकॉर्पोरेट्स इनटू द सेल. वो उस सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और वो रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा.
Okay, and that is called as recombinant DNA technology. Recombinant technology is DNA technology is one of the most recent advances in biotechnology, which was developed by two scientists named as Boyer and Cohen in 1973. So this technology was first time discovered by two scientists named Boyer and Cohen in 1973. अब कौन कौन से टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं जो कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं, जैसे कि जीन आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, सिंथेसिस, उसके बाद सीक्वेंसिंग, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, ये इसके हायर स्टडीज के लिए। देन पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देन म्यूटाजेनेसिस, ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। म्यूटाजेनेसिस क्या, रिवर्स जेनेटिक्स होता है, एक्सप्रेशन एनालिसिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स लाइक आरएफएलपीज। आरएफएलपीज का फुल फॉर्म है रिस्ट्रिक्शन, फ्रैगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। देन मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एंड जीन थेरेपी। तो ये सारे डिफरेंट टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स हैं जो कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। बेसिक प्रिंसिपल जो होता है इस टेक्नोलॉजी का इज व्हाट, the DNA is inserted into another DNA molecule called vector. अब एक DNA सेगमेंट जो कि जिसको हम कहेंगे वेक्टर को होस्ट डीएनए में एंटर कराया जाता है। ओके, तो डीएनए इज इंसर्टेड इनटू अनदर डीएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड वेक्टर। The recombinant vector is then introduced into the host cell, मतलब जिस सेल के अंदर वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, that is called as host cell, where it replicates and the gene is then produced. उसके बाद उसको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराया जाता है एंड देन इट स्टार्ट्स रेप्लिकेटिंग इनसाइड द होस्ट सेल। जैसे कि ये डोनर डीएनए है, ओके, इसके ये इस पार्ट को हमें एंटर कराना है इसमें, प्लाज्मिड डीएनए। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए को एक स्पेसिफिक सेगमेंट में कट करते हैं, डबल स्टैंडर्ड। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दे आर द एंजाइम दैट हेल्प्स इन कटिंग द डीएनए। तो इनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। उसके बाद जो डिजायर्ड डीएनए पीस है, इसको हम एक होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करा देंगे एंड देन लाइगेज इज द एंजाइम व्हिच हेल्प्स इन जॉइनिंग दैट सेगमेंट इनटू द होस्ट सेल। उसके बाद वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस हो गया होस्ट सेल में, इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल। उसके बाद जैसे वो एक होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस हो गया, देन इट स्टार्ट्स रेप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड द प्रोटीन इज फाइनली एक्सप्रेस। सो दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें कौन कौन से प्रोसीजर्स अभी हमने देखे, आइसोलेटिंग ऑफ द डीएनए, हमें डीएनए को जिस भी डीएनए फ्रैगमेंट को इंसर्ट करना है हमारे वेक्टर डीएनए को होस्ट सेल में जो इंसर्ट करना है, देन फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेटिंग द डीएनए, देन कटिंग ऑफ द डीएनए। कटिंग ऑफ द डीएनए कैसे करते हैं हम, कुछ एंजाइम्स जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं। देन जॉइनिंग ऑफ द डीएनए, उसके बाद जैसे हमने होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस किया, देन द जॉइनिंग इज आल्सो रिक्वायर्ड। सो जॉइनिंग इज डन बाय अनदर टाइप ऑफ एंजाइम्स that is called as ligase enzyme. Then finally there is amplification of डीएनए। डीएनए को हम कट्स किससे करते हैं, या फिर तो मैकेनिकल शेयरिंग भी कर सकते हैं, जोर जोर से हिलाने से भी डीएनए फ्रैगमेंट्स छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं, या फिर तो हम सीजर्स, जिनको मैंने अभी बताया मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, उनको उनके थ्रू भी हम कट कर सकते हैं। ओके, देन जॉइनिंग ऑफ द डीएनए इज डन बाय अदर टाइप ऑफ एंजाइम्स, दे आर कॉल्ड एज ligase enzyme, DNA ligase. Now what are the various techniques which are used in rDNA technology? सबसे पहले हमने जब अपने वेक्टर डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस तो कर दिया, ओके, बट व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स, अब हम इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, हाउ वी विल डिटेक्ट दैट दिस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन या हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। ओके, तो उसको हम डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, पहला है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जेल के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि जो शॉर्टर फ्रैगमेंट्स होंगे वो फास्टर मूव करेंगे लार्जर फ्रैगमेंट से। ओके, तो उससे हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम ट्रांसफर ऑफ डीएनए को पता कर सकते हैं। देन क्लोनिंग ऑफ द लाइब्रेरीज, देन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मैपिंग, polymerase chain reaction, nucleic acid hybridization and DNA microarrays. So these are the various techniques which are used in rDNA technology. Gel electrophoresis क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि डीएनए फ्रैगमेंट्स, डिफरेंट साइज के डीएनए फ्रैगमेंट्स जो होते हैं उनको हम एक इलेक्ट्रिकल फील्ड से पास करते हैं एंड दे आर अप्लाइड टू अ जेल। एक जेल हम उसमें हम रन करते हैं, तो जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए माइग्रेट्स अवे फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, बिकॉज
अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रैगमेंट्स रहेंगे वो they will move away from the negative but they will move towards the positive electrode. Okay, उसमें electrodes लगे होते हैं. The smaller the fragment, the faster it migrate. जितना smaller fragment डीएनए का होगा उतना वो faster move करेगा. उसके बाद पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर, जैसे हमने डोनर डीएनए को हमने ट्रांसफर तो कर दिया होस्ट सेल में, बट उसको एम्पलीफाई करना होता है. एक ही डीएनए सेगमेंट को हम हजारों गुना एम्पलीफाई कर देते हैं, बढ़ा देते हैं उसका. तो एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफाई डीएनए बाय इन विट्रो सिंथेसिस, कुछ ऐसा हम एक डिफरेंट एंजाइम्स का कॉम्बिनेशन लेके उसका एक रिएक्शन बनाया जाता है. देन मेनली पीसीआर एक मशीन होती है, उसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू हम नैनोग्राम्स को माइक्रोग्राम्स में वी कैन कन्वर्ट द अमाउंट ऑफ द डीएनए. Okay, so it allows the isolation of the specific segment of the DNA from a small DNA using DNA primers at the ends of the segments of the DNA. Primers का use किया जाता है. They are the short segments of DNA which have the complementary sequences. Now, अभी हमने देखा कि rDNA technology क्या होती है. Now, what is the application of this technology in agriculture? We will see what is the application of this technology into agriculture. Growing crops of your choice, मतलब हम अपनी choice के crops को grow कर सकते हैं, जैसे कि हम GM foods में करते हैं, genetically modified food होते हैं. Pesticide resistant crops, मतलब हमें ऐसे crops हम grow कर सकते हैं जिसमें हमें pesticide spray करना ही नहीं पड़ेगा. Okay, because they have the inherent resistance inside them. Then fruits with the attractive colors, जब उनके अट्रैक्टिव कलर्स या उनका अपीयरेंस होगा तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ेगी. ऑल बीइंग ग्रोन इन आर्टिफिशियल कंडीशंस. फार्माकोलॉजी, आर्टिफिशियल इंसुलिन, अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखें तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी ह्यूमन जेनेटिक्स में भी बहुत यूज होती है. उसके लिए हम आर्टिफिशियल इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए, ड्रग डिलीवरी टू टारगेट साइट्स, मतलब हम कोई पर्टिकुलर ड्रग डिलीवरी करनी है, टारगेट साइट्स को हमें टारगेट करना है. देन मेडिसिन में भी ये यूज